अच्छा भाई, लेट्स बिगिन। Last class में we were studying about test for ions and how do we check which cation or anion is present in the aqueous solution of any salt. तो वो हमने देखा था. To check for cations we use either sodium hydroxide or aqueous ammonia. We have to use both of these reagents separately to test for ions. And in order to test for anions, we have different testing mechanism for each anion present in the aqueous solution, and they all have different observations, and these tables will be given to you in the exam, so you do not have to worry about cramming these tables for as far as your ATP is concerned. But for theory paper and MCQ paper, you still have to remember these tables. Secondly, the test for gases, we also discussed that, and we also discussed about the flame test. We did, right? About flame test as well. Today we have to try some questions using these tables, and let's see how it goes today. It's something very different and very new for you guys. Make sure you pay attention. Okay, we're not done with the flame test. Oh, okay. Let's do it. It will just take a while. देखो भाई, हमने कैटाइंस को टेस्ट करने के लिए वी यूज two different methods. We can use two different reagents like sodium hydroxide and aqueous ammonia. Aqueous ammonia is ammonium hydroxide, which is also the alkali. We have one more testing method to test for cations present in any compound. As for test for cations, we can only test for those cations which are present in the aqueous solution. But let's say if your cation is not present in the aqueous solution, if it is present in the insoluble salt, like for example, if we have copper 2 carbonate, how do we test that copper ion is present, not a carbonate ion? We want to test if whether the copper 2 positive ion is present in this compound or not. We have one more method. This is known as flame test. होता क्या है कि जब for example, if we have any compound containing copper ion, and when we burn that compound, we get a characteristic flame color which is known as blue-green flame. In order to test for that, what we do is we take a metal wire loop. This is a metal wire loop. It looks something like this. If you have played with those soap bubbles, जिसमें आप वो सोप सोल्यूशन में वायर लूप डाल के, आपके टाइम में शायद वो प्लास्टिक का आने लग गया था, बट ड्यूरिंग आवर टाइम जब हम बच्चे थे तो वो मेटल वायर का होता था. वी कैन यूज अ मेटल वायर लूप, वी कैन यूज अ स्प्लिंट, वुडन स्प्लिंट भी हम यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं. हम करते क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गिविंग दी सॉलिड सैंपल ऑफ दैट पर्टिकुलर आइन, लाइक लिथियम ऑक्साइड हमें गिवन है, एंड इफ यू वांट टू चेक वेदर द लिथियम आइन इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड और नॉट, हम क्या करेंगे, वी विल टेक दिस मेटल वायर लूप, वी विल डिप इनटू दी स्पॉटेड सॉल्यूशन, और जो भी सैंपल हमें दिया हुआ है उसका लिथियम का, उसमें उसको डिप करेंगे. वी विल ट्राई टू हैव सम पाउडर ओवर दिस मेटल वायर लूप, और उस वायर लूप को वी विल पुट इन अ बंसन बर्नर. बंसन बर्नर बेसिकली केमिस्ट्री की लैब का जो स्टोव होता है ना, उसको हम बंसन बर्नर कहते हैं. बंसन बर्नर इज अ वेरी सिंपल डिवाइस. लेट मी शो यू. इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. दिस इज द बंसन बर्नर. ठीक है, इसमें हमारे पास नेचुरल गैस आती है, वही जो घरों में आती है. होता क्या है, ऊपर से हम इसको जब लिट करते हैं तो फ्लेम जलता है. नेचुरल गैस जो है, मीथेन गैस, इट विल बर्न, इट विल प्रोड्यूस अ फ्लेम. इसका जो अपना नेचुरल कलर होता है फ्लेम का, वो ब्लू कलर होता है, राइट. अच्छा, इस बंसन बर्नर के बारे में जो जितनी भी लेबलिंग गिवन है ना, ये सब याद नहीं करनी है. बस यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि इट्स फ्लेम कलर इज ऑफ ब्लू इन कलर, और गैस फायर्ड होता है ये. इसमें नेचुरल गैस आती है, वही कुकिंग गैस जिसको हम कहते हैं. और इसमें यहाँ पे ना बॉटम पे कुछ एयर होल्स गिवन होते हैं. अब एयर होल को हम जितना ओपन करेंगे उतना ज्यादा फ्लेम जो है वो हमारा ज्यादा हाई इंटेंसिटी का बनेगा. ठीक है. तो एयर होल्स ऑफ अ बंसन बर्नर कंट्रोल द स्ट्रेंथ ऑफ अ फ्लेम. जितनी एयर ओपनिंग आप बड़ी रखेंगे उतना एयर अंदर जाएगा. और एक्चुअली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच हेल्प्स इन बर्निंग. विदाउट ऑक्सीजन यू कैन नॉट बर्न एनीथिंग. दिस इज द बंसन बर्नर. इतना ही याद रखना है आपको इसके बारे में.
बाकी हम एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में इसको देखेंगे, और ऑर्गेनिक में जब हम कंबशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो इट विल मेक मोर सेंस ओवर देयर. So what we do is we just put this metal wire loop in a sample of or solid sample of any particular compound which contains lithium ion, और उसके बाद उसके ऊपर कुछ solid लग जाएगा and we will put this metal wire loop into the flame of Bunsen burner. और जब वो जलेगा तो it will give a flame color which is red in color. रेड कलर का फ्लेम दिखेगा. ये सारे कंपाउंड्स आप सब ने जलते हुए देखे हुए. जब फायरवर्क्स आप देखते हो तो फायरवर्क्स में क्या होता है, फायरवर्क्स में हमारे पास डिफरेंट पैकेट्स होते हैं डेट कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स. लाइक अगर लिथियम ऑक्साइड हम डाल दें, किसी में सोडियम ऑक्साइड डाल दें, और उसके नीचे जो है हम गन पाउडर डाल देते हैं. जब ये बर्न होता है गन पाउडर की वजह से वो दूर जाता है, तो एयर में जाएगा, प्रोपेल होगा. और जब ये कंपाउंड्स इसमें बर्न होना शुरू होंगे तो इट विल गिव अ कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर. वो जो फ्लेम कलर्स आपको डिफरेंट फायरवर्क्स में दिख रहे होते हैं वो इन्हीं कंपाउंड्स की वजह से होते हैं. इफ a compound containing lithium ion is burning, it will give you a red flame color. If a compound containing sodium ion is burning, it will give you a yellow flame color. If a compound containing potassium ion is burning, it will give you a lilac flame color. Lilac is a shade of purple. आप सर्च करके देख सकते हैं lilac color कैसा होता है. If a compound containing copper 2 positive ion is burning, it will give you a blue green flame color. If a compound containing calcium ion is burning, it will give you a orange red flame color. If a compound containing barium ion is burning, it will give you a light green flame color. Right? तो सिंपल स्टेप्स इसके आपको याद होने चाहिए. पुट अ क्लीन मेटल वायर लूप इन अ कंटेनर ऑफ सॉलिड सैंपल, put the wire in a Bunsen flame and observe the flame color. Let's say if you have a soluble salt solution of these ions, let's say if you have copper 2 sulfate. Now if you just dip this metal wire loop in a copper 2 sulfate solution. अच्छा, इसकी at the end of a class मैं आज आपके साथ कुछ वीडियोस भी शेयर करूंगा, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं. आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से लैब में ये परफॉर्म किया जाता है. तो जब आप कॉपर टू सल्फेट सोल्यूशन में इसको डिप करेंगे तो जब बाहर निकालेंगे वायर लूप पे तो कुछ सोल्यूशन लगा हुआ होगा. इफ यू जस्ट पुट दैट वायर लूप इनटू द बंसन फ्लेम, अगेन यू विल सी the characteristic flame color of copper 2 positive ion burning, that would be your blue green flame color. So you have to take a metal wire loop. और हम इसको क्लीन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर लेट से अगर अब हमने अभी लिथियम का टेस्ट किया था तो उस पर अगर कोई लिथियम लगा हुआ है तो जाहिर है लिथियम का कलर भी आएगा. तो इसलिए हम इसको लिखते हैं टेक अ क्लीन मेटल वायर लूप एंड डिप इनटू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मेटल आयन एंड ऑब्जर्व द पुट इट इनटू द बंसन फ्लेम. यू हैव टू ऐड वन मोर पॉइंट. Put it in a Bunsen flame and observe the flame color. Abu Bakar, it will be given in paper, ATP paper only. It will not be given in MCQ or theory paper. For that, you have to remember that. You have to memorize it for Hania. You have to memorize it for MCQ and theory paper. For ATP, it will be given. चलो भाई, अब जरा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. क्वेश्चंस में देखते हैं किस तरह से पूछता है. जी जारा बेटा बोले. अच्छा भाई, ये क्वेश्चन जो है वो पुराने फॉर्मेट का है. जरा मेटल बर्न मेटल आइन हम बात कर रहे हैं. मेटल जब वायर लूप होगा उसमें जो हमारे पास मेटल होता है वो अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होता है. जो हम वायर लूप लेते हैं ये यूजुअली निक्रोम वायर का लेते हैं और ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होता है. मेटल आइन अगर होगा ना तो उसके बर्निंग का कलर डिफरेंट फ्लेम कलर दिखेंगे. सही है. आमना नहीं बेटा, कोई ऐसा ट्रिक्स की जरूरत नहीं है. ये जब आप टेबल यूज करेंगे ना, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. सफान जस्ट रिजल्ट याद कर लो, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि वो कह सकता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू मेजर दी टू ऑब्जर्व दी अमोनिया गैस इज एक्चुअली गिवन और नॉट. वो दे सकता है. आपको जो मैंने लिखवाया है आप याद रखें तो वो अच्छा है, क्योंकि फॉर्मेट चेंज हुआ है. हम कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे. तो जिस जिस तरह से क्वेश्चंस आते रहे हैं इस फॉर्मेट पे वो हमने आपको सारे बता दिए हैं. तो वो मेथड आप याद रखें. टेस्ट तो आपको याद करना ही नहीं है ना एटीपी के लिए, वो तो गिवन होगा. अब जब उसने टेस्ट दे दिया, याद नहीं करने के लिए दे रहा, तो वो उस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है कि परफॉर्म कैसे करेंगे. आप उसका अपैरेटस बना दें या फिर आप अरेंजमेंट लिख दें उसकी. अच्छा भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है,
क्वेश्चन में कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द टेस्ट अ स्टूडेंट डज ऑन कंपाउंड एल. Complete the table by adding the conclusion for A, the observation for test B and C, and observation which lead to the conclusion for test D. अच्छा, अब इसमें हम कर क्या रहे हैं? We are taking a compound L and we are dissolving it into water and the solution is divided into three parts. We have a compound which is soluble in water and of course in order to perform test for ions we need a compound which has to be soluble in water. तो हमने इसमें L का कुछ solid अमाउंट सैंपल वाटर में हमने डिसॉल्व किया है. अब इसमें कोई कैटाइन होगा, कोई एनाइन होगा, हमें नहीं पता क्या है. तो हमने इसमें डिसॉल्व कर दिया. अब मैं इस पूरे सैंपल पे टेस्ट थोड़ी ना कर लूंगा. मैं इसमें से कुछ पार्ट अलग करूंगा टेस्ट ट्यूब में, डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में, और उस पर टेस्ट करूंगा. फर्स्ट टेस्ट हमने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब पे कर दिया, सेकंड टेस्ट हमने सेकंड टेस्ट ट्यूब पे कर दिया. तो वो यही कह रहे हैं कि एल इज डिसॉल्व इन वाटर एंड the solution is divided into three parts for test B, C and D. अच्छा, जब हमने इसको डिसॉल्व किया तो ऑब्जर्वेशन में हमें देखा कि वो डिसॉल्व तो हो गया बट अ कलर्ड सोल्यूशन इज फॉर्म. इफ एनी कंपाउंड इज फॉर्मिंग अ कलर्ड सोल्यूशन इट मींस के इसमें हमारा ट्रांजिशन मेटल आइन होगा. बिकॉज जितने भी ग्रुप मेटल्स हैं, ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के, ग्रुप 3 के, दे नेवर फॉर्म अ कलर्ड कंपाउंड. A colored compound can only be formed by a transition metal ion. तो इसकी कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं? ट्रांजिशन metal ion is present in this compound L. Transition metal ion is present. अगर कलरलेस लिखा हुआ होता है यहाँ पे, लेट्स से इफ द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एल हैड बीन कलरलेस, तो इट मींस कि ट्रांजिशन मेटल आयन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. अब मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि ऑल ट्रांजिशन मेटल आयन दे फॉर्म अ कलर्ड सॉल्यूशन. सम ऑफ द ट्रांजिशन मेटल दे डू नॉट फॉर्म अ कलर्ड सॉल्यूशन. वो कलरलेस भी बना सकता है, लेकिन अगर कलर्ड है तो हर हाल में ट्रांजिशन मेटल आयन हैज टू बी प्रेजेंट, right? So if a colored solution is there, it means transition metal ion is present. But if a solution is colorless, it means transition metal ion may or may not be present. तो उसकी ऑब्जर्वेशन में आप लिख सकते हैं ट्रांजिशन मेटल आयन may be present. क्या पता हो, क्या पता ना हो, क्या पता कोई और मेटल आयन हो, ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का या ग्रुप 3 का. उमर, फ्लेम कलर्स अलग चीज है, टेस्ट सॉल्यूशन के कलर अलग चीज है. जब आप बर्न कर रहे हैं तो वो एक कलर दे रहा है, लेकिन लिथियम ऑक्साइड वैसे तो व्हाइट कलर का है, बट व्हेन इट बर्न्स द लिथियम आइड प्रोड्यूसेस द रेड कलर फ्लेम. ये ज़ारा एटीपी का क्वेश्चन है बच्चे ये. ओके, नेक्स्ट ही इज सेइंग टू द फर्स्ट पार्ट एक्वस अमोनिया इज एडेड अंटिल अ चेंज इज सीन. अब इसमें क्या ऑब्जर्वेशन आई जिसकी बेसिस पे ही इज कंक्लूडिंग दैट एल में कंटेन्स क्रोमियम आइन और Fe2 पॉजिटिव आइन. फॉर दैट यू हैव टू रेफर टू द टेबल. जो आपके पास टेस्ट फॉर कैटाइंस का टेबल है उसमें आप जाएंगे और आप देखेंगे कि एक्वस अमोनिया डालने पे ऐसी क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है कि जिसपे वो कह रहे हैं कि क्रोमियम आइन भी हो सकता है और Fe2 पॉजिटिव आइन भी हो सकता है. मतलब ही इज नॉट श्योर कि कौन सा आइन प्रेजेंट है. ही इज सेइंग कि इनमें से कोई भी हो सकता है. क्या पता दोनों हो, क्या पता कोई एक हो. If you see the test for aqueous ammonia, aqueous ammonia डालने पे हमारे पास Cr3 पॉजिटिव क्रोमियम आइन और Fe2 पॉजिटिव आइन के साथ, दोनों के साथ जो ऑब्जर्वेशन आती है वो आती है ग्रीन पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सिस, और Fe2 पॉजिटिव आइन डालने पे भी ग्रीन पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सिस. पीपीटी टर्न्स ब्राउन नियर सरफेस ऑन स्टैंडिंग. ये कब होगा? जब आप उसको छोड़ेंगे. लेकिन इनिशियल ऑब्जर्वेशन आपके पास दोनों की सिमिलर है ना, ग्रीन पीपीटी. इसलिए ही इज कंफ्यूज कि क्रोमियम आइन है या Fe2 पॉजिटिव आइन है, नहीं बता सकते, इसलिए दोनों लिख दिए. तो यहां पे ऑब्जर्वेशन क्या ही होगी? ग्रीन पीपीटी. दैट्स व्हाई ही हैज रिटन बोथ. ऑब्जर्वेशन इज ग्रीन पीपीटी. अच्छा, फिर उसने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है ही हैज एडेड एक्सिस ऑफ एक्वस अमोनिया. After adding axis of aqueous ammonia, he is still saying L contains chromium ion और Fe2 positive ion, क्योंकि दोनों की ऑब्जर्वेशन सेम है. जब अमोनिया, एक्वस अमोनिया आप क्रोमियम आइन और Fe2 पॉजिटिव आइन में डालते हैं तो ग्रीन पीपीटी आता है एंड पीपीटी स्टेज इनसॉल्युबल. दैट्स व्हाई ही इज स्टिल अनश्योर कि क्रोमियम आइन है या Fe2 पॉजिटिव आइन है, राइट?
नाउ ही इज परफॉर्मिंग अनदर टेस्ट, तो उसने अब एक और टेस्ट ट्यूब फिल आउट की होगी जिसमें ही इज adding sodium hydroxide. First he is adding some amount of sodium hydroxide, then he is adding excess of sodium hydroxide. When he has added few drops of sodium hydroxide, उस पे he is saying कि chromium ion और Fe2 पॉजिटिव आइन हो सकता है. अभी भी he is not sure कि कौन सा आइन है. इसका मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे भी आपके पास सेम ऑब्जर्वेशन आ रही है दोनों में. सोडियम हाइड्रोक्साइड when you add it into chromium ion you will get green ppt, और Fe2 पॉजिटिव आइन में भी you are still getting green ppt. हाँ, एक्सेस डालने पे ऑब्जर्वेशन डिफरेंट हो सकती है अभी आगे चल के, लेकिन राइट नाउ इज सेइंग कि अभी भी हमारे पास ग्रीन पीपीटी आएगा. तो तभी वो कह रहे हैं कि क्रोमियम आइन भी हो सकता है और Fe2 पॉजिटिव आइन भी हो सकता है. तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें आपको लिखना है अगेन ग्रीन पीपीटी. लेकिन जब उसने एक्सेस अमोनिया सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया है उसके बाद ही इज सेइंग कि क्रोमियम आइन इज प्रेजेंट. ही हैज रूल्ड आउट द प्रेजेंस ऑफ Fe2 पॉजिटिव आइन. ऑन व्हाट बेसिस? कंक्लूजन कुछ ऐसा आया होगा कि उसने कहा कि नहीं भाई, क्रोमियम आइन प्रेजेंट है, Fe2 पॉजिटिव आइन प्रेजेंट नहीं है. तो अगर हम एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे देखें, आफ्टर एडिंग एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू क्रोमियम आइन द पीपीटी becomes soluble in excess, whereas for Fe2 positive ion ppt stays insoluble in excess. ही इज सेइंग कि क्रोमियम आइन कंफर्म हो गया है. तो उसका क्या मतलब है कि जो ग्रीन पीपीटी बना था वो एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे क्या हो गया होगा, डिसॉल्व हो गया होगा. ठीक है. अच्छा, ये हमेशा इसी तरह से होता है कि आप पहले फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं फिर एक्सेस डालते हैं. तभी तो अलग अलग लिखा हुआ है, ग्रीन पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस और ग्रीन पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस. तो इट मींस कि हमेशा ऐसे ही होता है कि आप पहले फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं एंड देन यू ऐड एक्सेस अमाउंट. तो वो फ्यू ड्रॉप्स तो नहीं लिखता, वो बस ये लिख देता है पहले आया ग्रीन पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस और ग्रीन पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस. इफ ही इज कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम आइंस, मतलब ऑब्जर्वेशन क्या ही होगी एक्सेस में, सॉल्युबल इन एक्सेस. तो आपको यहां पे अब क्या लिखना होगा, यू हैव टू मेंशन क्रोमियम आइन प्रेजेंट है तो इट मींस ग्रीन पीपीटी एंड पीपीटी इज सॉल्युबल. और पीपीटी डिसॉल्व कुछ भी लिख सकते हैं वर्डिंग आप, राइट. अच्छा, लास्ट स्टेप में इसमें कह रहा है कि एल कैटाइन तो हमें पता चल गया क्रोमियम आइन है कंपाउंड एल में. एनाइन कौन सा बता दिया, सल्फेट आइन. ही इज सेइंग द सल्फेट आइन इज प्रेजेंट, वो तो है. आपने बस इसका टेस्ट लिखना है और उसकी ऑब्जर्वेशन लिखनी है. तो टेस्ट और ऑब्जर्वेशन तो आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जो आपको गिवन होगी. ठीक है. सल्फेट आयन का टेस्ट आप टेबल पे जाएं, वो मिल जाएगा. ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन ऐड एक्वस बेरियम नाइट्रेट. इफ व्हाइट पीपीटी फॉर्म्स इट मींस सल्फेट आयन इज प्रेजेंट. अब अगर आप इस क्वेश्चन के मार्क्स देखें तो इट इज 3 + 3 6 7 8 9. ये क्वेश्चन पुराने फॉर्मेट पे है. 2023 के बाद ये फॉर्मेट चेंज हो गया. मैंने आपको सिर्फ इसलिए करवाया जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कैसा क्वेश्चन आता था. ये क्वेश्चन कब आता था, जब टेबल गिवन नहीं होता था आपके पास. मतलब ये सारा जो आपने लिखा है, यू हैव टू रिकॉल एवरीथिंग बाय योरसेल्फ. ठीक है. ये याद करके जाना होता था, तो इसलिए इसके मार्क्स भी ज्यादा थे. अब जब ये टेबल सामने होगा तो उसने क्वेश्चन का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं करा. अब हम चलते हैं जरा न्यू स्टाइल के क्वेश्चंस पे कि अब टेबल के साथ जब ये क्वेश्चन आएगा तो किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है. नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन, अब इसने थोड़ा सा इसको लेंदी किया है क्योंकि टेबल गिवन है बेटा, आपको याद नहीं करना है, इसमें देख देख के लिखना है. तो कुछ तो थोड़ा सा तो मुश्किल करेगा ना क्वेश्चन को. इसमें कह रहा है अ स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद एक्वस कॉपर 2 सल्फेट, aqueous aluminum sulfate, and aqueous solution labeled X. You are given three compounds and all three are soluble in water. That's why they have given you aqueous salts. Aqueous copper 2 sulfate दिया हुआ है, पानी में डिसॉल्व. aqueous aluminum sulfate दिया हुआ है और aqueous solution जिस labeled X है उसमें नहीं पता मुझे कौन से कैटाइन और कौन से एनाइन है. The student tests the three solutions by adding each reagent shown in the table. Reagent is the testing reactant जो आप यूज कर रहे होते हैं. कंप्लीट द टेबल विद द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन. देखो, अब इस टेबल के जरिए फॉर्मेटिंग समझो कि क्या चीज कहां पे लिखनी है. पहले तो रीजेंट्स दिए हुए हैं उसने फर्स्ट कॉलम में. सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, फिर एक्सिस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, फिर अमोनिया डाला, फिर एक्सिस अमोनिया डाला, फिर सिल्वर नाइट्रेट डाला और फिर बेरियम नाइट्रेट डाला. मतलब कैटाइन और एनाइन सबको टेस्ट कर रहा है इसमें.
अच्छा, पहला जो कंपाउंड है दैट इज कॉपर टू सल्फेट विच विल कंटेन, अच्छा इसमें आपको कैटाइन और एनाइन ऑलरेडी पता है क्या प्रेजेंट है, कॉपर आइन होगा इसमें और सल्फेट आइन होगा। सेकंड जो कंपाउंड है दैट इज एल्यूमिनियम सल्फेट, तो उसमें भी आपको कैटाइन और एनाइन पता है, एल्यूमिनियम आइन है और सल्फेट आइन है। सेकंड जो कंपाउंड है वो कंपाउंड एक्स है और उसमें जो कैटाइन और एनाइन प्रेजेंट है वो हिडन है, वो नहीं दिख रहे आपको। इसीलिए इसने, देखो आप फर्स्ट कॉलम को पहले फिल करेंगे, आप इसको रो वाइज नहीं चलेंगे, मतलब आप हॉरिजॉन्टली फिल नहीं करेंगे इस टेबल को। यू हैव टू एनालाइज इट योरसेल्फ कि मैं पहले कॉपर टू सल्फेट पे सारे टेस्ट करूंगा, तो पहले मैं फर्स्ट कॉलम को फिल करूंगा, फिर मैं सेकंड कॉलम्स को फिल करूंगा, फिर मैं थर्ड कॉलम्स को देखूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू फिल इन दी फर्स्ट कॉलम वेयर यू आर टेस्टिंग फॉर कॉपर टू सल्फेट। अब फर्स्ट टेस्ट क्या है, दे हैव एडेड aqueous sodium hydroxide in copper 2 sulfate, and you know it very well now that sodium hydroxide is used to test for cations। पहले first you add some amount of sodium hydroxide जिसको मैं कहता हूं few drops of sodium hydroxide, then you add excess sodium hydroxide, तो वो भी cation की presence को confirm करेगा। aqueous ammonia again is used to test for cation, and excess ammonia again वो उसी cation की presence को confirm करेगा। तो बेटा कैटाइन तो आपको पता है ना इसमें क्या है, यू नो द कैटाइन प्रेजेंट इज कॉपर 2 पॉजिटिव आइन, एंड व्हेन यू गोना ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड इनटू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉपर 2 पॉजिटिव आइन, तो ऑब्जर्वेशन आपको टेबल से देख के लिखनी है बस। क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे पहले क्या नजर आएगा कॉपर 2 पॉजिटिव आइंस की प्रेजेंस में, और एक्सिस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे क्या नजर आएगा, देख के लिखना है। एनाइन नीचे आएगा सारा, अभी नीचे है एनाइन, बताना है एनाइन का भी, पहले कैटाइन को देख ले। अच्छा जी, तो अब sodium hydroxide, when you're gonna add sodium hydroxide into the solution containing copper 2 positive ion, first you will get light blue ppt which is insoluble in excess। you have to write these observations separately क्योंकि उसने इन एक्सिस वाला अलग से पूछा हुआ है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट यू विल राइट लाइट ब्लू पीपीटी, और एक्सिस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे पीपीटी की ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है, लाइट ब्लू पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस, तो ये वाला पार्ट आप अलग से लिखेंगे, इनसॉल्युबल इन एक्सेस वाला। you will write light blue ppt and ppt insoluble, right, that's it। now he is saying aqueous ammonia डाला है और फिर एक्सिस अमोनिया डाला है, तो कॉपर आयन प्रेजेंट है, कॉपर आयन की प्रेजेंस में एक्वस अमोनिया डालने पे ऑब्जर्वेशन क्या आती है, लाइट ब्लू पीपीटी अगेन, बट एक्सेस एक्वस अमोनिया डालने पे सॉल्युबल इन एक्सेस गिविंग अ डार्क ब्लू सॉल्यूशन। so you have to write these observations separately। in front of aqueous ammonia you will just write light blue ppt and ppt dissolve, soluble को हम dissolve कह सकते हैं ना, ppt dissolves to give a blue solution, right। कॉपर सल्फेट soluble है ऑफ कोर्स, तभी तो टेस्ट फॉर आइन हम लगा रहे हैं इसमें, right। you have to write this complete observation, light blue ppt soluble in excess giving a dark blue solution, dark भी लिखें बल्कि वर्ड बाय वर्ड लिखें, देख के तो लिखना है आपको, गिविंग अ डार्क ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है, इस पूरा कॉलम को कंप्लीटली फिल करो। अब नाउ दिस इज द बेस्ट पार्ट, द एनाइन प्रेजेंट इज द सल्फेट आइन, राइट, it is given in the compound, you can see it, it is sulfate ion। now he is saying aqueous silver nitrate and dilute nitric acid is added। अब this adding silver nitrate and nitric acid is not the test for cation, cation का टेस्ट आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया के साथ, सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट आप एनाइन के लिए करते हैं, अगेन बेरियम नाइट्रेट का टेस्ट आप एनाइन के लिए करते हैं। आयशा आ गया ना सल्फेट आयन के लिए टेस्ट, देखो कौन से दो टेस्ट के लिए बात कर रहा है ये आपसे, ही इज टॉकिंग अबाउट
देखो सिल्वर नाइट्रेट आपने जो डाला है, सिल्वर नाइट्रेट एंड नाइट्रिक एसिड, यू आर यूजिंग इट फॉर द टेस्ट फॉर क्लोराइड आइन और ब्रोमाइड आइन और आयोडाइड आइन, right? And for silver nitric acid and barium nitrate, you are using to test for sulfate ion. अच्छा, उसने सिल्वर नाइट्रेट वाला टेस्ट किया, वो तो क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए होता है। हमें पता है कि इस कंपाउंड कॉपर टू सल्फेट में क्लोराइड है ना, ब्रोमाइड है ना, आयोडाइड है। तो ये जो टेस्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट वाला, वो बेकार में कर रहा है। तो उसके साथ हमें कोई चेंज दिखेगा ही नहीं, कोई पीपीटी दिखेगा ही नहीं। ये वाला टेस्ट काम का है हमारे पास, बेरियम नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड वाला। बेरियम नाइट्रेट डालेंगे तो वी विल गेट अ वाइट पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट, राइट? सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो सिल्वर क्लोराइड थोड़ी ना बनेगा। वाई? बिकॉज देयर इज नो क्लोराइड आइन प्रेजेंट, सल्फेट आइन प्रेजेंट है। और सिल्वर सल्फेट कोई इंसॉल्युबल सॉल्ट थोड़ी है, तो वाइट पीपीटी क्यों मिलेगा? तो इफ ही इज यूजिंग, अच्छा हमें पता है सल्फेट आइन प्रेजेंट है इसमें, क्लोराइड ना ब्रोमाइड ना आयोडाइड कुछ भी नहीं है। तो इफ ही इज एडिंग सिल्वर नाइट्रेट, इट मींस देयर विल बी नो चेंज। इसमें आप क्या लिखेंगे? नो चेंज। बट इफ ही इज एडिंग बेरियम नाइट्रेट, तो दिस विल गिव यू white ppt because you already know that this compound contains sulfate ion. कितने लोगों को ये बात समझ नहीं आई है? देखो बेटा, आपको कंपाउंड पता है क्या है? कॉपर टू सल्फेट है। इसमें कैटाइन और एनाइन आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है? नहीं 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 ज़ारा, कैटाइन और एनाइन सेपरेट कॉलम्स में नहीं है। सेपरेट कॉलम्स में इस क्वेश्चन में डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है? कॉपर टू सल्फेट का कैटाइन और एनाइन का टेस्ट इसने एक ही कॉलम में लिखे हुए हैं सारे। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला कैटाइन को टेस्ट करने के लिए, अमोनिया डाला कैटाइन को टेस्ट करने के लिए, और जो एनाइन टेस्ट कर रहा है वो इन दो नीचे वाले टेस्ट से कर रहा है। मतलब यहाँ पे हमारा एनाइन टेस्ट हो रहा है, नीचे वाले दो टेस्ट जो दिए हुए हैं, ठीक है? अभी आप भूल जाए इसको। ये जो आपके पास सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम है, इसको हम देख ही नहीं रहे अभी। इसमें दूसरे कंपाउंड्स के टेस्ट लिखेंगे हम लोग। अभी कॉपर टू सल्फेट के लिए ये सारे टेस्ट हैं, ठीक है? या आपको टेबल की हेडिंग्स देख के रियलाइज करना है। और ये नए फॉर्मेट के क्वेश्चन आपको इसलिए करवाए जा रहे हैं कि आप क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इस तरह से फॉर्मेट में गिवन होगा क्वेश्चन। जी सीरत, कुछ पूछ रहे हैं आप? देखो, मैं ये कह रहा हूं कि हमें ये तो पता है कि सल्फेट आयन प्रेजेंट है इसमें। तो सिल्वर नाइट्रेट जब हम डालते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट हम किस आयन की टेस्टिंग के लिए डालते हैं? सिल्वर नाइट्रेट इज नॉट यूज टू टेस्ट फॉर सल्फेट आयन। सिल्वर नाइट्रेट इज यूज टू टेस्ट फॉर इधर क्लोराइड आयन, या फिर ब्रोमाइड आयन, या फिर आयोडाइड आयन। और बेरियम नाइट्रेट is used to test for sulfate ion. So if you are adding silver nitrate and if your solution does not contain chloride or bromide or iodide, it means there will be no result. आप no change लिखेंगे उसमें। But if you are adding barium nitrate and if sulfate ion is present, it means you will write white PPT. अब समझ आई बात? यहां पे आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ you will write there is no change because you know that the compound does not contain chloride, bromide or iodide. Silver nitrate is a test for chloride, bromide or iodide. Your compound does not contain any of these ions. Your compound contains sulfate ion. तो सल्फेट आयन का जो टेस्ट है वो है बेरियम नाइट्रेट वाला। तो इसके साथ व्हाइट पीपीटी आएगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ फिर कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। सही है? नो इट वोंट इफेक्ट। अगर आप सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि सल्फेट आयन के साथ कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा, तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अगर आप इसकी केमिस्ट्री जानना चाह रहे हैं, चलो मैं बता देता हूँ, सिल्वर सल्फेट बनेगा। बट इज योर सिल्वर सल्फेट अ सॉल्युबल सॉल्ट? ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर कैल्शियम सल्फेट, लेड टू सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। सिल्वर सल्फेट इज अ सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्युबल सॉल्ट है तो वो आपको कुछ पीपीटी थोड़ी बनता हुआ दिखेगा उसका। नाइट्रिक एसिड हम हमेशा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, नाइट्रिक एसिड तो हम सब में ही डाल रहे हैं ना। हम नाइट्रिक एसिड क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट सब में डाल रहे हैं। नाइट्रिक एसिड हम इसलिए डालते हैं ताकि लेट से अगर कोई कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है ना सोल्यूशन में, वो एसिड के साथ रिएक्ट होकर निकल जाए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना के।
अदरवाइज कार्बोनेट आइन, अगर लेट से कोई कार्बोनेट आइन भी है सोल्यूशन में, तो सिल्वर कार्बोनेट का भी व्हाइट पीपीटी आता है, सिल्वर क्लोराइड का भी व्हाइट पीपीटी आ रहा होगा, तो हाउ वुड यू इंश्योर कि ये व्हाइट पीपीटी सिल्वर क्लोराइड की वजह से या सिल्वर कार्बोनेट की वजह से? तो जहां जहां मैंने नाइट्रिक एसिड डाला है ना, वो इसलिए डाला है टू रिमूव एनी कार्बोनेट प्रेजेंट, राइट? समझ आ गई, क्लियर हो गई अब बात? तो जो कॉपर टू सल्फेट है उसके सारे टेस्ट खत्म हो गए। अब आपके पास जो सेकंड कंपाउंड है जो आपको टेस्ट करना है वो है एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट में यू कैन सी दी कैटाइन एंड एनाइन प्रेजेंट। कैटाइन इज योर एल्यूमिनियम आइन ऑफ कोर्स, एंड एनाइन इज योर सल्फेट आइन। तो अब आपने अगेन टेबल से जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट में तो क्या नजर आएगा? विद एल्यूमिनियम आइन यू विल सी, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे विद एल्यूमिनियम आइन यू विल सी व्हाइट पीपीटी soluble in Axis giving a colorless solution. And with aqueous ammonia with aluminum ion you will see white ppt insoluble in Axis. एक्स तो अभी हमने आइडेंटिफाई करा ही नहीं है ना, अभी हम करेंगे। वो मैं नीचे कुछ और लिख रहा था, दिस इज नॉट एक्स, कुछ बता रहा था नीचे। तो if you are adding sodium hydroxide and if aluminum ion is present you will get white ppt which is ppt soluble giving a, in Axis it is soluble giving a colorless solution. अलीजे बेटा एक्स आइडेंटिफाई नहीं करा है अभी हमने, कर रहे हैं अभी, करेंगे। और एक्वस अमोनिया जब डालेंगे तो एल्यूमिनियम आयन के साथ क्या आएगा? व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सिस। With aqueous ammonia you will get, due to aluminum ion, white ppt which is ppt insoluble when you are adding excess of aqueous ammonia. Now the anion in this compound present is again sulfate ion, ठीक है? तो उसके साथ सिल्वर नाइट्रेट ने अगेन इट विल गिव नो चेंज। However, with barium nitrate you will get white ppt of barium sulfate, तो यहां पे अगेन सेम आएगा। Now for compound X they haven't told you the formula of compound X, but they have given you the test and their observation. If you are adding sodium hydroxide and if you are getting red brown ppt which is also insoluble in Axis, with aqueous ammonia again you have red brown ppt which is insoluble in Axis, ppt remains means it is insoluble in Axis. तो ये कौन सा कैटाइन होगा? एक ही कैटाइन है जिसके साथ रेड ब्राउन पीपीटी आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे भी और एक्वस अमोनिया डालने पे भी, दैट इज Fe3 पॉजिटिव आयन। तो इट मींस आयरन नहीं, आयरन 3 पॉजिटिव आयन पूरा लिखेंगे। दिस मींस द कैटाइन प्रेजेंट इज Fe3 पॉजिटिव आयन। कंफर्म हो गया कैटाइन कौन सा है? एनाइन कैसे पता लगेगा? अब बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो सिल्वर नाइट्रेट इस पे भी टेस्ट करेंगे। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये व्हाइट पीपीटी दे रहा है और बेरियम नाइट्रेट के साथ इट इज सेइंग नो चेंज। अगर बेरियम नाइट्रेट के साथ नो चेंज दे रहा है इट मींस नो SO4 2 नेगेटिव आयन, क्योंकि बेरियम नाइट्रेट इज अ टेस्ट फॉर सल्फेट आयन, बट सिल्वर नाइट्रेट इज अ टेस्ट फॉर क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। अगर व्हाइट पीपीटी आ रहा है तो इट मींस विच एनाइन इज प्रेजेंट विद सिल्वर नाइट, इफ इट इज गिविंग व्हाइट पीपीटी विद सिल्वर नाइट्रेट इट मींस क्लोराइड आयन मस्ट बी प्रेजेंट। अगर क्रीम पीपीटी आता तो हम कहते हैं ब्रोमाइड आयन है, अगर येलो पीपीटी आता तो हम कहते हैं आयोडाइड आयन। अब देखो बेरियम नाइट्रेट के साथ नो चेंज क्योंकि सल्फेट आयन नहीं है, पहले के दो कंपाउंड्स में क्लोराइड नहीं था तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ नो चेंज था। अब इस कंपाउंड एक्स में ही इज सेइंग नो चेंज विद सल्फेट, इट मींस क्लोराइड आयन नहीं, सल्फेट आयन नहीं है ना। और सिल्वर नाइट्रेट के साथ ही इज सेइंग व्हाइट पीपीटी, इट मींस देयर मस्ट बी क्लोराइड आयन प्रेजेंट। समझ आती है बात? तो कंपाउंड एक्स में वी हैव Fe3 positive ion as a cation and Cl negative ion as a anion. तो X has to be FeCl3 और इसका अगर नाम लिखने के लिए क्या है तो दिस शुड बी आयरन 3 क्लोराइड बिकॉज इट इज अ ट्रांजिशन मेटल, यू हैव टू स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इट। सो 7 मार्क्स नहीं है, 9 मार्क्स है। गॉट इट? आगे बढ़े।
चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आई एम लीविंग एज ए होमवर्क। ये मैंने ATP1 के नाम से अपलोड करवाई है फाइल, राइट। उसमें मिल जाएगा आपको, और फिर इसके अलग से 5 पेपर्स और है, मैं होमवर्क भी आपको बताता हूँ अभी क्लास एंड पे। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। अच्छा, टेबल वाला आ जाए तो भाई बोनस है, टेबल वाला नहीं आए तो भाई इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल नहीं है, आसान ही है, आ जाएगा समझ। क्वेश्चन नंबर 3 सेज अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स सोल्यूशन W। सोल्यूशन है तो मतलब सॉल्युबल सॉल्ट सोल्यूशन है, सोल्यूशन W है एक, एंड देयर इज अनदर कंपाउंड कॉपर टू कार्बोनेट। कॉपर टू कार्बोनेट का सोल्यूशन नहीं बोला हुआ है, क्या पता सॉलिड हो। जाहिर है सॉलिड ही होगा क्योंकि इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। कार्बोनेट आयन को हम टेस्ट कर सकते हैं वैसे इनसॉल्युबल सॉलिड के साथ भी, एसिड डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अच्छा, पार्ट ए में कह रहे हैं द टेस्ट द स्टूडेंट डज ऑन W आर शोन इन टेबल 3.1। Some of the observation for these tests are also shown. First test, he is saying add aqueous sodium hydroxide to W. Solution remains colorless. No PPT. कोई PPT नहीं आया। पहले थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ऐसा कौन सा कैटाइन है सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे PPT नहीं आता? सबके साथ तो आता है PPT। एल्यूमिनियम के साथ व्हाइट PPT, कैल्शियम के साथ व्हाइट PPT, क्रोमियम ग्रीन PPT, कॉपर लाइट ब्लू PPT, Fe2 पॉजिटिव एंड ग्रीन PPT, 3 पॉजिटिव एंड ग्रीन PPT, जिंक पॉजिटिव एंड white PPT. There is only one cation which does not give any PPT with aqueous sodium hydroxide, which is your ammoniamine. But उसका टेस्ट क्या है? You have to heat the solution containing ammoniamine after adding sodium hydroxide. And you know this reaction, right? Ammoniamine जो होगा वो किसी ना किसी कंपाउंड में होगा ना। जब अमोनियम सॉल्ट्स में आप अल्कली डाल के हीट करते हैं तो यू विल गेट सॉल्ट, वाटर एंड अमोनिया गैस। तो जो अमोनिया प्रोड्यूस ऑन वार्मिंग है वो इसकी वजह से। अब उसने टेस्ट पूरा नहीं लिखा, उसको ये बात पूरी लिखनी थी ना कि कोई PPT नहीं आ रहा तो अमोनिया गैस बन रही है, राइट। तो अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में थोड़ा सा इनकम्प्लीट छोड़ दिया उसने ऑब्जर्वेशन को। स्टूडेंट है ना, छोड़ सकता है इनकम्प्लीट, टीचर छोड़िए। एड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑब्जर्वेशन में सोल्यूशन रिमेन्स कलरलेस। आगे क्या था? आगे ये था कि अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड ऑन वार्मिंग। हीट भी नहीं लिखा इसने, टेस्ट पूरा भी नहीं लिखा। टेस्ट पूरा क्या है? हीट भी तो करना था, और अमोनिया का भी टेस्ट भी करना होता है आगे। अमोनिया कलरलेस है तो अमोनिया को टेस्ट करते हैं ना। वी ब्रिंग डैम रेड लिटमस पेपर ब्लू नियर द गैस, इट मस्ट टर्न रेड। रेड लिटमस लेके आएंगे वो ब्लू होगा। बहरहाल ये इसकी गलती है, क्या पता इसी पे से क्वेश्चन पूछ ले क्या गलत लिखा हुआ है। सेकंड टेस्ट में कह रहा है ऐड नाइट्रिक एसिड एंड देन ऐड एक्वस बेरियम नाइट्रेट। यू नो वेरी वेल नाउ के बेरियम नाइट्रेट के साइन के लिए यूज होता है। बेरियम नाइट्रेट इज यूज फॉर सल्फेट आयन। अगर व्हाइट PPT आ रहा है ऑब्जर्वेशन में इट मींस सल्फेट आयन प्रेजेंट है। तो W में सल्फेट आयन प्रेजेंट है, ये तो मुझे यहीं से कंफर्म हो गया। आगे पूछे ना पूछे मुझे पता है कि W में सल्फेट आयन इज प्रेजेंट। ऐड, थर्ड टेस्ट में इज सेइंग ऐड dilute hydrochloric acid then add aqueous silver nitrate. We use silver nitrate to test for halide ions, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। और अगर व्हाइट PPT बन रहा है तो हम कह सकते हैं क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, ही इज यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या टेस्ट फॉर आइंस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया हुआ है? टेस्ट फॉर आइंस में ही हैज एवरीवेयर यूज नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ी ना यूज किया है, नाइट्रिक एसिड यूज किया है। प्रॉब्लम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करने से। क्या प्रॉब्लम होगा? गैस कर सकते हो? कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है और व्हाइट PPT आ रहा है, तो आप तो खुश हो गए सिल्वर नाइट्रेट डालने पे व्हाइट PPT आ रहा है क्लोराइड आइन का। बट वी कैन नॉट से फॉर श्योर कि ये क्लोराइड आइन पहले से था या नहीं था। देखो भाई, अगर मैं आपसे कह रहा हूं मेरे पास एक सोल्यूशन W है, उस सोल्यूशन W में वी हैड क्लोराइड आइन थे पहले से, आपने इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और आपने इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला। जब सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो soluble salt है, it will give silver ion, and silver ion and chloride ion they will together will form silver chloride which is white PPT। और white PPT देख के आप कह देंगे कि हाँ भाई क्लोराइड आयन W में है।
कार्बोनेट चले जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, एसिड के साथ कोई भी कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट हो जाएगा, चाहे कोई भी एसिड हो। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कह रहा हूं कि W में लेट से क्लोराइड आयन कभी था ही नहीं, देयर वाज नो क्लोराइड आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन W, कोई और आयन से क्लोराइड आयन नहीं था। अगर आप नाइट्रिक एसिड डालते तो नाइट्रिक एसिड से कौन से आयन मिलते हैं? H पॉजिटिव आयन है, नाइट्रेट आयन। और फिर सिल्वर नाइट्रेट डालते तो सिल्वर आयन मिलता और नाइट्रेट आयन मिलता सिल्वर नाइट्रेट डालने से। तो क्या इसमें व्हाइट पीपीटी बनता? अगर क्लोराइड आयन है ही नहीं तो सिल्वर क्लोराइड नहीं बनेगा, तो देयर विल बी नो व्हाइट पीपीटी। अगर आपने नाइट्रिक एसिड डाला होता, लेकिन अभी आपने ब्लेंडर क्या कर दिया, यहाँ पे आपने नाइट्रिक एसिड की जगह ले लिया HCl। अब HCl में भी तो क्लोराइड आयन है, HCl भी तो आयनाइज होगा सोल्यूशन में जाके, तो वो HCl आपको H पॉजिटिव आयन देगा और क्लोराइड आयन भी देगा। अब आपने सिल्वर नाइट्रेट डाला ऊपर से, अब एकदम से व्हाइट पीपीटी दिख गया। वो व्हाइट पीपीटी जो आपको मिला वो सिल्वर क्लोराइड की वजह से मिला, लेकिन क्या वो क्लोराइड आयन सोल्यूशन W के थे? मैं तो कह रहा हूं W में क्लोराइड आयन लेट से अगर है ही नहीं तो फिर थोड़ी व्हाइट पीपीटी मिलता। आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, उसकी वजह से क्लोराइड आयन आ गया सोल्यूशन में। अब आपको कैसे पता कि ये क्लोराइड आयन पहले से था या HCl से आया? और सिल्वर को कैसे पता कि मुझे उसी क्लोराइड आयन के साथ जाके जुड़ना है जो एसिड से नहीं आ रहा, जो W का था? Silver will see a chloride ion and it will combine with the chloride ion to give you white PPT. The choice of acid is very wrong over here. You cannot use hydrochloric acid because this will also provide you with chloride ions. तो आपको कैसे पता कि क्लोराइड आयन पहले से था या नहीं था W में? व्हाइट पीपीटी आ गया, आपने कह दिया क्लोराइड आयन है। W में नहीं था क्लोराइड आयन, HCl से आ गया। इसलिए आप यहाँ पे HCl यूज नहीं कर सकते, ये गलत है। आगे कह रहा है फ्लेम टेस्ट ऑन W परफॉर्म किया, नो कलर इज ऑब्जर्व। मतलब जो हमारा जो मेटल लाइंस हमें टेस्ट गिवन है उसमें से कोई फ्लेम कलर नहीं आया होगा। देखो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये तो मैंने आपको ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्म करवा दिया। क्वेश्चन में इज सेइंग द स्टूडेंट करेक्टली कंक्लूड्स दैट अमोनिया इज फॉर्म्ड इन टेस्ट 1। टेस्ट 1 में वी हैव एडेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड बट द टेस्ट रिटन इज इनकम्प्लीट, यू हैव टू हीट इट एज वेल। वार्म किया हुआ है ना, वार्म करना होता है। एंड ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, अमोनिया गैस विल बी प्रोड्यूस विच विल टर्न डैम रेड लिटमस पेपर ब्लू। लेकिन वो कह रहा है कि करेक्ट जो बात की है उसने करेक्ट की है, मतलब बात करेक्ट नहीं की, ऑब्जर्वेशन जो आई है वो करेक्ट है कि अमोनियम आयन प्रेजेंट था इस। लेकिन वो साथ में कह रहे हैं डिस्क्राइब व्हाट एल्स द स्टूडेंट मस्ट हैव डन टू रीच दिस कंक्लूजन। मतलब दिस शोज के उसका टेस्ट इनकम्प्लीट है, तभी तो आपको कह रहा है कि पूरी बात लिखो। और पूरी बात क्या है? वी हैव टू हीट द सोल्यूशन, हीट the solution of W after adding aqueous sodium hydroxide, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, and test the gas produced with damp, you have to write damp, गीला होना चाहिए, damp red litmus paper which must turn blue. Yes, 3 marks for this one. The second part says state why the student cannot identify the anion in W from the observation in test 3. In test 3, he is using hydrochloric acid incorrectly because hydrochloric acid will also give you chloride ion. So if you are saying on adding silver nitrate, if white PPT is coming, then white PPT may not already be present due to compound W. White PPT must have just come from the hydrochloric acid. क्या पता W में white chloride था ही नहीं कभी. But right now you are getting white PPT because you are saying कि chloride ion present है. Chloride ion तो HCl से आ गया ना. How can I say for sure कि chloride ion W में भी था? क्या पता ना हो, right? So you have to write
chloride ion will also come from HCl. पूरा एक्सप्लेन नहीं करना आपको, ना जगह दी हुई है आपके पास, बस आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्लोराइड आयन विल आल्सो बी देयर ड्यू टू द HCl. Maybe chloride ion was never present in compound W, but still you are getting white PPT because it is there from adding HCl. So you should have added nitric acid instead of HCl. Now part 3 says, state how the test and observation show that W does not contain sodium ion. The last step, which is the flame test, this says no color is observed after performing flame test. It means अगर सोडियम आयन होता तो फ्लेम टेस्ट हमें क्या मिलता, कहां गया फ्लेम टेस्ट? If there was sodium ion present, it means there has to be a yellow flame. But he is saying no color. It means sodium ion is not present. तो आपको इसमें क्या लिखना है? You just simply have to write how the test and observation show that the W does not contain sodium ions because no yellow flame. That's it. And what are the cations and anions that are just confirmed? From test 1 you have confirmed ammonium ion because ammonium ion का ही तो टेस्ट है जिसमें अमोनिया गैस निकल लिया on adding sodium hydroxide. And from test 2 you have confirmed sulfate ion because you have added barium nitrate. इसमें आपने नाइट्रिक एसिड ही डाला है तो सल्फेट आयन है, व्हाइट पीपीटी आ रहा है. तो cation is ammonium ion and the anion is present is sulfate ion, SO4 2 negative ion. Yes, beta, these tables will be given in ATP. They are given in ATP. होंगे, मिलेंगे, पेपर के पीछे लगा हुआ होगा, देख लेना पड़ेगा. Moving on, we still have some part of this question left. अच्छा जी, आगे देखो दो चीजें ली थी उसने. दूसरी चीज क्या ली थी उसने? कॉपर टू कार्बोनेट भी तो लिया था, उसको तो भूल ही गए. उसको भी तो देखो, अगर नहीं दिया हुआ हुआ आरिश तो वॉकआउट कर देना पेपर से. भाई लिखा हुआ है सिलेबस में, दिया हुआ होगा तो दिया हुआ होगा ना, ऐसे कैसे हो सकता है? The student adds hydrochloric acid to copper 2 carbonate. A gas and a solution are produced. भाई कॉपर टू कार्बोनेट, अब आपको तो ये रिएक्शन अच्छे से पता है ना. कॉपर टू कार्बोनेट में जब HCl डालेंगे तो यू विल गेट कॉपर टू क्लोराइड विच इज अ सॉल्युबल सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो उसके क्या निकलते हैं? एफर्वेसेंस. Effervescence of gas is produced. If you do not want to write effervescence, you can write fizzing of gas. Describe how to do the flame test to confirm the presence of copper 2 ions in the solution. अभी हमने flame test लिखा, वो कैसे लिखेंगे? Take a clean metal wire loop, dip it into a solution of copper 2 positive ions, put the wire loop in a Bunsen flame, observe the flame color, which is कॉपर टू पॉजिटिव आयन के साथ जो फ्लेम कलर आ रहा है हमारे पास वो ब्लू ग्रीन है. आप यहां से देख के उसका फ्लेम कलर भी लिख दीजिएगा. दिस इज ब्लू ग्रीन. तो आप यहां से फ्लेम कलर भी लिख दें. फिजिंग बेटा सारी गैसेस के लिए होता है जो सोल्यूशन में बनता है. ठीक है. The last part is saying describe the other method the student could use to confirm the solution contains copper 2 positive ions. One other method. कॉपर 2 पॉजिटिव आयन का टेस्ट फॉर कैटाइंस भी तो है. एड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड जब डालोगे सोल्यूशन में, add aqueous sodium hydroxide in a sample
कंटेनिंग कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। और क्या ऑब्जर्वेशन आती है, अगेन टेबल से देख के लिख देना। क्या ऑब्जर्वेशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे, लाइट ब्लू पीपीटी, insoluble in access, just have to write this thing. At access aqueous sodium hydroxide in a sample containing copper 2 positive ion, light blue ppt is formed, which stays insoluble on adding excess sodium hydroxide. 14 marks. Yes, you have to learn this for theory paper and MCQ paper. आमना डिफरेंट है। हाँ, इन ऑर्डर टू परफॉर्म द फ्लेम टेस्ट आप जरूरी नहीं है कि मेटल वायर लूप यूज करें। यू कैन जस्ट टेक अ सैंपल इन अ स्पैचुला, और वो भी बंसन फ्लेम पे रख सकते हैं। यू कैन इवन टेक अ मैच स्टिक और एक वुडन स्प्लिंट भी ले सकते हैं, लकड़ी भी ले सकते हैं कोई, उस पे भी लगा के कंपाउंड को बंसन फ्लेम पे रख सकते हैं। बिल्कुल, यू कैन राइट इट नादिया, बिल्कुल। And if you have a piece of metal, yes, you can definitely write it as well. These are different methods. I will share you with the videos of different methods. आप बंसन बर्नर पे कुछ लोग तो कुछ बच्चों को लैब ले जाओ तो वो उठा उठा के उस पर डाल रहे होते हैं, वो नहीं करना बस, that is not safe. आप ना थ्योरी पेपर पूछ रहे हो, एटीपी पेपर पूछ रहे हो। थ्योरी पेपर में स्पेसिफिक नंबर नहीं होता, यूजुअली 8 to 9 होते हैं, 10 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। एटीपी में भी यूजुअली हैव अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन एज पर न्यू फॉर्मेट। अभी जो आपका होमवर्क है ना, आपका होमवर्क क्या है कि इसमें एक क्वेश्चन हमने छोड़ा है, वो आप करेंगे। सेकेंडली, आई एम अपलोडिंग वन एटीपी बुक। इफ यू सी दी एटीपी बुक, इसमें आपके पास एक ऑब्वियसली एक टेबल ऑफ कंटेंट गिवन होगा। उसमें अभी ये वाले जो हमारे पास है ना, हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की सॉल्ट प्रिपरेशन वाले क्वेश्चन कुछ और करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइंस, टेस्ट फॉर गैसेस हमने देखा, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स हमने देखा, पहले देखा था। थ्योरी के क्वेश्चन देखे थे, सेम एटीपी के भी होते हैं। तो ये वाला आपका होमवर्क है, पेज 1 to 35। नेक्स्ट वी विल डू मोल्स एंड टाइट्रेशन। इफ यू सी दी पेज नंबर्स, तो हमारे पास अगर ये पूरी बुकलेट जो है वो 212 पेजेस की है, तो 80 पेजेस तक सिर्फ ये दो चैप्टर्स ले रहे हैं। मतलब इट मींस कि इनका वेटेज सबसे ज्यादा है। हम दिसंबर तक ये सारे कर लेंगे, इट मींस हाफ ऑफ द एटीपी विल बी कवर्ड। ठीक है, ये महक, ये बेटा पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगे कल तक, तो आप वहां से एक्सेस कर सकते। चलो, इकरा, इस्माइल किया तभी ऐसा कुछ हालात लग रहे हैं मुझे आप